Hello children, hope all of you are ready for your English class, and we have done our chapter number 12, that is comparisons, in our previous class, isn't it? Today we are going to start a new chapter, that is lesson number 13, and the title of our chapter is pronouns. What it is, children? Pronouns. So hope all of you remembered this word, isn't it, children? Do you remember? Do you remember? Yes, because in second class we had already discussed about these pronouns. So let us discuss in detail about these pronouns. So firstly, tell me what is a pronoun. So in order to know about pronouns के बारे में पता चलना हो तो हमको पहले nouns क्या है ये पता चलना चाहिए. And we already know what nouns are. What are nouns? Naming words. Yes, names of persons, animals, places, things, birds, and all these. So pronoun is nothing but this is nothing but a word that is used in place of a noun. मतलब noun के बदले में जो word हम use करते हैं उन्हीं को हम pronouns बोलते हैं. Is it okay, children? So this is the definition of pronoun, which is just colored in yellow color. So go through the definition. इस definition को 1 से 3 बार बोलिए, बोलने से ज़्यादा समझिए, then definitely you can say what is a pronoun. So a pronoun is a word that is used in place of a noun. कहीं जगह में, मतलब in so many times what happens, we have to use some pronouns in place of nouns, because writing noun every time won't make the whatever the paragraph that we are writing more effective, है ना. एक ही word को बार बार use कर रहे हो, जैसा for example Sita is a girl, Sita studies this in this class, Sita goes to this school, Sita is these years of old, ये वो बार बार सीता, it's not good to use Sita. So in the place of noun Sita we have to use some pronoun. In the same way, अगर if you are going to write about a boy or about some boys or a group of boys, तब क्या होता है, आपको एक ही पूरा ग्रुप की सबकी नेम को लिखते जाएंगे. No, it doesn't look more effective. So for that we are just going to use pronouns in the place of nouns where it is necessary. So pronouns are nothing but the words which are used in place of nouns. Nouns क्या है? संज्ञा, आपको पता है. और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जो हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम है. That is nothing but our pronouns. For example, I, we, she, him, her, ये सब क्या होते हैं बेटा? Pronouns. So let's read about Piku to understand pronouns better. So here we can see a boy, small boy, whose name is Piku, and we are just going to read about Piku. Piku के बारे में अपन कुछ समझेंगे अभी. Piku is a small boy. Piku एक छोटा सा बॉय है. Piku goes to school. Piku is very naughty, but the teacher loves Piku. So every time what is Piku, 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 कितने बार Piku, Piku लिखेंगे. और लिखना है हमें Piku के बारे में, जैसा कि Piku कितने years old है, what is what Piku likes to do, what he wants to become. So ऐसा बहुत सारे lines लिखना हो तो कितनी बार Piku, Piku यूज़ करेंगे. So we know that what is Piku. ये Piku क्या है? That is a naming word which is a noun, but using it again and again does not sound right. But using it बार बार Piku, Piku, it doesn't look good, it doesn't sound good. Now let's read these sentences. इसी Piku की पैराग्राफ जो है, जो लाइन्स हमने Piku के बारे में लिखा, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अगेन हमने नई लाइन्स बनाए थे. लेट अस रीड दोस. Piku is a small boy. Yes, we know that. He goes to school. He is very naughty, but the teachers love him. So observe the words he and him. So here we have used he and him in place of Piku to make it sound good. Isn't it, children? Now ये पैराग्राफ आपको कितना अच्छा लग रही है? बार बार Piku, 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 it doesn't sound good. So we have replaced Piku with he. Why? Because Piku is a boy and a male person will be replaced with the pronoun he. So अभी आपके लिए कुछ प्रोनाउंस की टेबल दिया है इधर. कीप इन माइंड द फॉलोइंग प्रोनाउंस. बस इतनी सी प्रोनाउंस आप अभी याद रखिए. इज इट ओके चिल्ड्रन? इतने से प्रोनाउंस आप याद रखिए कि कौन सी प्रोनाउन के साथ क्या आपको यूज़ करनी है. आई के साथ हमेशा आप क्या यूज़ करोगी? मी. वी कब होता है? आप हो, यू आर देयर एंड समबडी एल्स आर देयर विथ यू. आप और आपके साथ कोई हो तो वी.
तब आप कैसा यूज़ करेंगे, हाँ अस, यस फॉर अस दे हैव डन दिस, अपने लिए. ही फॉर मेल, सो ही का हिम, एंड शी फॉर फीमेल हर. इट, कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी थिंग हो तो हम एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, क्या यूज़ करेंगे, इट. इट के लिए यू. दे, THEY, दे मीन्स, दे क्या होता है बेटा, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट, दे इज़ कम्प्लीटली अनदर ग्रुप ऑफ पीपल. कभी भी आप अनदर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करते हो तो यू हैव टू यूज़ दे एंड देम. Okay children, they and them. So all these are the few pronouns which you have to keep in mind. So try to remember these, that these words are pronouns which we have to use at करेक्ट सिचुएशंस. जैसा कि मान लीजिए आपके बारे में आपको बोलना है तो आई और मी, वो दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस वेयर यू आर यूजिंग. वी एंड अस, ये कब यूज़ करेंगे, यू आर देयर इन द ग्रुप एंड अलॉन्ग विथ यू सम फ्यू मोर पर्सन्स आर देयर, देन वी एंड अस. He and him for a male noun, and she and her for a female noun. It and you for a non-living thing, animals and all these. They and them for another group of persons. Okay children, so the pronoun it is used for a non-living thing. It कब यूज़ करते हैं हम, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग के लिए, जैसा बेड है, वॉल है, टेबल है, बैग है, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स है, उनके लिए मोस्टली हम इट यूज़ करते हैं. अगेन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एन एनिमल, यस, एंड बट एनिमल्स तो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, बट स्टिल वी आर सेइंग इट एज इट, बिकॉज इट एनिमल के लिए भी यूज़ करते हैं. और या कोई बेबी, जब छोटा बेबी होते हैं जिसका नाम नहीं रखते हैं तो बेबी को भी इट जैसा बोलते हैं हम. व्हेन वी डोंट नो वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं वो मेल है या फीमेल है ये हमें पता नहीं चलता है, इसी सिचुएशन में भी हम इट यूज़ करते हैं. सो द प्रोनाउन इट किसके लिए यूज़ होता है बेटा, मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. एनिमल्स आर, वी नो दैट एनिमल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, स्टिल वी use it for animals or a baby or for the things which we can't see it as male or female. जैसा आपके पास चेयर है, can you say whether it is a female noun or a male noun? No. Can you decide that? No. So it will come under, we simply used to say it as it. It is a thing. Now let us do an exercise to know more about this. So let us start exercise A, and before doing that what we have to do is read the question carefully. And what is the question given here? Underline the pronouns in the following sentences. So now we came to know about few pronouns, हमने देखा है ना, ऊपर जो बॉक्स में दिए हैं चिल्ड्रन, ये प्रोनाउंस को डेफिनेशन क्या है, कुछ प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनको रिकॉग्नाइज करिएगा. ओके, नाउ अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट वन, आई एम नॉट फीलिंग वेल. सो आई एम इधर किसी का नाम नहीं है, नाम की जगह आपके अपने लिए आप बोल रहे हो तो आई इज़ अ प्रोनाउन. सो अंडरलाइन आई. दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, कुछ लोग हैं वो आपस में बातें कर रहे थे. सो दे इज़ अ प्रोनाउन. वी वेंट टू ग्रैंड मास हाउस टू विजिट हर. वी, हम गए थे, आप और आपके साथ आपकी भाई बहन फ्रेंड्स जो भी है. So we is a pronoun. Mummy and I went to see the play. So mummy is a noun, mother is a noun, and I, मम्मी के साथ मैं भी गई थी. So mummy and my used to, me used to तो नहीं बोलेंगे. So here the pronoun that we used is मम्मी भी गए थे और मम्मी के साथ मैं भी थी. इट इज़ अ कॉमिक बुक. यस, जो बुक उधर है ना टेबल पे, वो कौन सा बुक है बेटा, कॉमिक बुक. सो इट, वी आर सेइंग अबाउट बुक के बारे में हम इट यूज़ करके बताए थे. सो इट विल बी द प्रोनाउन हियर. वी क्लीन द पोर्च आफ्टर द स्टॉर्म आने के बाद हमने पूरा पोर्च को अच्छा से क्लीन किया था. सो वी, व्हाट डू यू मीन बाय वी इज़ अ प्रोनाउन. आप और आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स जो है अच्छा से पूरा वो क्लीन किया था. स्टॉर्म आने के बाद, आंधी तूफान जब आता है, देखो अपने पोर्च एरिया कितना गंदा हो जाता है, तो उसको पूरा हमने क्लीन किया. द बुक इज़ इंटरेस्टिंग एज इट टॉक्स अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. यस, इधर देखिए बुक बहुत इंटरेस्टिंग है. क्यों? एज इट टॉक्स अबाउट. इट मतलब कौन सा चीज़ आके बात कर रही है, बिकॉज द बुक, इधर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि द बुक इज़ इंटरेस्टिंग एज द बुक टॉक्स अबाउट. फिर अगेन वही बार बार आप बुक को रिपीट कर रहे हो, इट डजेंट साउंड गुड. सो दैट्स व्हाट द प्रोनाउन दैट वी यूज्ड हियर इज इट. बुक इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, वो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताते हैं. इट इज़ अ न्यू बैग. इट इज़ अ न्यू बैग, ये एक न्यू बैग है. कौन सा है न्यू बैग? इट
वो. So it is the pronoun that we have used. That bag is a new bag. That sentence doesn't sound good, that's why we use it. She asked me about the holiday plans. She, वो मेरे से पूछ रही थी, क्या पूछ रही थी? About the holiday plans. हॉलीडेज में कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या प्लानिंग हो रही है. तो she सॉरी, हमने एक फीमेल नाउन के लिए शी यूज़ किया. और किसके बारे में पूछ रही है, वो किससे पूछ रही है? मेरे से, तो मी. दीज टू आर द प्रोनाउंस. निशा इज़ एब्सेंट टुडे. आज निशा नहीं आई. क्यों नहीं आई? शी इज़ अनवेल. निशा इज़ एब्सेंट टुडे, निशा इज़ अनवेल, ऐसा यूज़ नहीं करेंगे हम. दैट्स वाई वी यूज द pronoun she in place of Nisha to make the sentence sound more good. So Nisha is absent today and she is unwell. So she here is the pronoun that is given. So underline the pronouns and go through the introduction of pronouns, definition, and the few pronouns that were given in the table. Thank you.